structure that is of flowering plants. Okay, so morphology of flowering plants we are going to learn in this chapter. So first topic is एंजियोस्पर्म. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में किंगडम प्लांटे में एंजियोस्पर्म्स के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ा था. So let's see, angiosperm is further divided into various category 5. Okay, अब जैसे कि एंजियोस्पर्म में हमने बहुत सारी चीजें लास्ट टाइम पढ़ी थी. Am I audible to everyone? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, students. Okay. So first is angiosperms. That is further divided into 5 different categories. And the first one is hydrophytes. And the second category is xerophytes. And the next one is psammophytes. P is silent. So write this 4 category first. The first is hydrophytes. Now, students, what do you mean by this term hydro? Hydro stands for water, okay? Hydro stands for water and phytes stand for plants. It means the plants which live in water are called as hydrophytes. Clear? So the plants which are growing in aquatic habitat are called hydrophytes. So यहाँ तक लिखा सबने? 5 different categories बनाओ. First is hydrophytes, xerophytes, psammophytes. पहले ये 3 लिखेंगे फिर next 3. Okay, 5 categories. Sorry. So hydrophytes means what? Which type of angiosperm? The plants which live in aquatic habitat, that is in water. For this, hydro stands for water, phyte stands for plants. So it means the plants which live in aquatic habitats are called hydrophytes. Hydrophytes, and the example is hydrilla. Done? समझ में आया सबको इतना? Yes. And the next one is xerophytes. Now, students, xerophytes means what? जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे आपका जो water होता है ना, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है. मीन्स लाइक जैसे कि राजस्थान वगैरह आप बोलते हो जहाँ पे वाटर का ऐसा रेनफॉल बहुत ही कम होता है, रेन की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है. सो द प्लेसेस विद स्कैंटी, ओके, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही स्कैंटी है, जैसे कि डेजर्ट. ओके, तो डेजर्ट में हमको पता है जैसे कि राजस्थान. ओके, सो सच टाइप ऑफ प्लांट्स वेयर द स्कैंटी रेनफॉल इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज xerophytes. ओके, जहाँ पे रेनफॉल की बहुत कमी, मतलब वाटर के एब्सेंस में आप बोल सकते हो, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है. सो ऐसे प्लांट्स कैसे होते हैं? दे आर एक्सेप्टेड टू दिस प्लांट्स. मतलब जहाँ पे वाटर कम है और वैसे वो अपने आप को उस टाइप के कंडीशन में अपने आप को ग्रो करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज xerophytes. सो द प्लांट्स, इसके नीचे लिखो, प्लांट्स growing in regions, या फिर growing in deserts लिख लो डायरेक्ट. The plants growing in deserts. We know deserts means what? Scanty rainfall or the absence of rainfall. Okay, and the example is opuntia. ओपनशिया देखा है सबने? ऐसे ऐसे होते, देखो उसमें स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, काटे काटे होते हैं. दिस इज ओपनशिया. बल्जी टाइप के फॉर्म में प्रेजेंट हो जिसमें ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, काटे. क्लियर? सबको समझ में आया इतना? And the next category is psammophytes. So psammophytes, students, basically it means the plants which are growing in soil. Okay, sandy soil. What do you mean by the sandy soil? जो सूखी मिट्टी होती है ना, देखो सॉइल में भी 2 टाइप के होते हैं. ओके, एक होता है थोड़ा सा वेट सॉइल, एक होता है सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल मींस कैसा? जो थोड़ी सी सूखी मिट्टी टाइप होती है. सो द प्लांट्स व्हिच आर ग्रोइंग इन सैंडी सॉइल आर कॉल्ड एज
सेमोफाइट्स. ओके, सो यहाँ पे नीचे लिखोगे द प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉइल, सैंडी सॉइल, and the example is Elymus. Example is Elymus, Elymus. Done, बच्चा लोग? So Yes. here we studied the three different type of angiosperm. One is hydrophytes. Hydro stands for water, phytes stand for plants. So the water living in aquatic habitat or water is called as hydrophytes. Example is hydrilla. And the next one is xerophytes. Zero stands for means what? There is less water availability. Okay. So in the scanty rainfall or absence of rainfall. So xerophytes means the plants growing in arid condition, you can say. Arid means what? Dry conditions. So with the scanty or no rainfall, like desert, example is Opuntia. And the next one is Samophytes. Samophytes means the plants that is growing in the sandy soil. So example is Elymus. All these three type of angiosperm is clear to everyone. This three type of different aquatic habitat, different types of habitat. So we'll see next two different type. Okay. तो मैं ये रफ कर रही हूँ और उसके बाद नेक्स्ट दो अलग टाइप वाले और देखेंगे हम लोग. टोटल यहाँ पे 5 टाइप के हैं. So the next one is lithophytes. Now what do you mean by lithophytes? So basically litho stands, students, litho stands for rock. Okay, rock समझते हो आप लोग? देखो हम लोग बोलते हैं ना मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं. So they are obtained from rock and soils. So जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, देखो एकदम बड़े बड़े पत्थर होते हैं जैसे कि आपको जंगल वगैरह में मिलेंगे. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रॉक. तो लिथोफाइट्स मतलब कैसे? ऐसे एंजियोस्पर्म्स, ऐसे प्लांट्स जो उन पत्थर के ऊपर ग्रो करते हैं. सो ग्रोइंग ऑन रॉक, the plants or the angiosperm that is growing on rock are called as lithophytes. Okay, example is Coccidium. समझ में आया सबको? एनी डाउट? And the next category is ये लिख लो पहले, लिथोफाइट्स. And the next category is halophytes. So halo we know. Halo stands for saline condition. Okay, salty. So halo stands for salty or saline condition. So the plants which are growing in saline soil are called as halophytes. Clear है इतना सबको? Students, is this clear to everyone? So the plants that are growing in saline soil are called as halophytes. Example is mangrove plants like Rhizophora. So example, you can write Rhizophora. समझ में आया सबको? तो बेसिकली हमने यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के एंजियोस्पर्म के वेरिएशंस देखे. फर्स्ट वन वाज हाइड्रोफाइट्स. The plants which are growing in aquatic habitats are called as hydrophytes, and the next one is xerophytes. The plants growing in the arid condition or deserts are called xerophytes. Example is Opuntia. And the next category is samophytes. The plants growing in sandy soil. Example is Elymus. And the next one is lithophytes. The plants which are growing on rock. Okay. Example is Coccidium. And the last one is halophytes. As we know, halo stands for saline condition or salty. So the plants growing in saline soil are called halophytes. And the example is Rhizophora. Is it clear to everyone? सबको ये क्लियर है?
Yes or no? Yes. Okay, so all 5 condition, all 5 categories clear to everyone, I hope. Yes. Okay. So should I rub it? Done everyone writing? रफ करूं, सबका लिख के हो गया? Yes. Okay. Now as we know, angiosperm students, जो angiosperm के seeds होते हैं, they undergo germination, right? वो germinate होते हैं एकदम proper, जो उनको जैसा environmental condition चाहिए, अगर आप वैसा provide करोगे तो germinate होंगे और आगे जाके क्या produce करेंगे? बताओ. Flower. वेरी गुड. फ्लावर. तो बेसिकली सीड से डायरेक्ट फ्लावर हो जाएगा. आप जब सीड सो करते हो, ग्रो करते हो, तो सीडलिंग प्रोड्यूस होता है, प्लांट प्रोड्यूस होता है, फिर आगे जाके फ्लावर एंड फ्रूट, राइट? Yes. ओके. सो नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी. अब हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी देखेंगे. सो बेसिकली प्लांट की मॉर्फोलॉजी स्टूडेंट्स क्या होती है, हमको पता है, एक रफ डायग्राम हम देख सकते हैं. ओके. सो वी नो इन प्लांट देयर इज 2 टाइप ऑफ सिस्टम इज प्रेजेंट. वन इज रूट सिस्टम एंड द अनदर वन इज विच सिस्टम? आप ऐसा कोई भी रफ डायग्राम खुद भी ड्रॉ कर सकते हो. ड्रॉ करो, चलो सब लोग साइड बाय साइड. सो बेसिकली प्लांट्स में 2 टाइप के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है एंड अनदर वन इज क्या होता है? विच सिस्टम? Stem. सॉरी. So this is flower. तो मॉर्फोलॉजी में वी नो देयर इज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम. एक होता है ऐसा वाला पार्ट स्टूडेंट्स जो कहाँ होता है? आपके सॉइल के अंदर. ओके. सो दैट इज कॉल्ड एज रूट सिस्टम. और जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज शूट सिस्टम. दिस इज योर फ्लावर, this is your fruit, this is your leaves, stem. तो बेसिकली प्लांट में इतने टाइप के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? अब रूट में भी स्टूडेंट्स 2 टाइप के रूट प्रेजेंट होते हैं. एक होता है प्राइमरी रूट, दूसरा होता है सेकेंडरी. ओके. सो दिस वन, ये जो आपका प्लांट आगे जाके डिवाइड हो रहा है ना, जो जाड़ा वाला, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट. Which root? This is your primary root. ओके. सो ये जो एकदम इधर जाड़ा सा थिक वाला आपका प्लांट जो आगे जाके सॉइल में डिवाइड होता है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रूट. अब प्राइमरी रूट जो है आपका, वो फर्दर डिवाइड होकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप रूट्स देख सकते हैं, राइट? ये एक सिंगल रूट जो है डिवाइड होकर अलग अलग रूट्स इसमें से अराइज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट्स. ओके. तो ये जो छोटे छोटे ये प्राइमरी रूट से अराइज होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट्स. समझ में आया सबको इतना? Yes. Is it clear to everyone? Yes. So this is basically a morphology of your normal plant. So this is called as which system? Shoot system. तो शूट सिस्टम जो आपका प्रेजेंट है वो सॉइल से बाहर है, दैट्स इट कॉल्ड शूट सिस्टम. और जो नीचे वाला पार्ट जो आपका सॉइल के अंदर है, दैट इज कॉल्ड एज रूट सिस्टम. समझ में आया? चलो अब ये फटाफट बना लो. तो बेसिकली यहाँ पे हमने 2 सिस्टम देखा, एक है रूट सिस्टम एंड अनदर वन इज शूट सिस्टम.
क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, सो डन, ड्राइंग बना के हो गया इतना? Yes. ओके, सो नेक्स्ट वन, अभी हमने जो ये प्लांट के पार्ट्स देखे, अभी इसमें से एक एक प्लांट हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो शूट सिस्टम में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है? फ्लावर, फ्रूट, लीव्स एंड स्टेम। ओके, रूट सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है? रूट्स आर प्रेजेंट इन रूट सिस्टम, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। फ्रॉम प्राइमरी रूट द रूट्स व्हिच आर अराइज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट्स। क्लियर? इतना सबको समझ में आया? तो आगे जाके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि शूट सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं एंड रूट सिस्टम में क्या क्या होती है। सो डन दिस डायग्राम, सबने कर लिया? तो इसके बाद Yes. अभी हम इस मॉर्फोलॉजी का एक एक चीज अच्छे से डिटेल में देखेंगे। अब जैसे कि फर्स्ट वन इज रूट, तो अभी हम लोग रूट को एकदम अच्छे से देखेंगे। तो रफ करूं मैं ये? ओके, सो हमारे प्लान का फर्स्ट पार्ट क्या था? रूट। तो हम लोग क्या देखेंगे? रूट को अब एकदम अच्छे से देखेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट विल सी टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। उसके पहले रूट होता क्या है? तो रूट का चलो एक डेफिनेशन लिख लो। सो फर्स्ट पार्ट ऐसे हेडिंग दो कि प्लांट का फर्स्ट पार्ट हम क्या देखने जा रहे हैं? रूट। ऐसे लिखो सब। डन? अब यहाँ पे इसके आगे थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लो, रूट होता क्या है? रूट इज अ, लिखो, रूट इज अ डिसेंडिंग पार्ट। रूट इज अ descending part of plant body, descending part। अब डिसेंडिंग क्यों बोला गया है? असेंडिंग की तरफ क्या था आपका? स्टेम। ओके, असेंडिंग मतलब क्या होता है? अप साइड, फ्रॉम डाउन टू अप। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? फ्रॉम अप टू डाउन। सो रूट आपका क्या है? फ्रॉम अप टू डाउन, डाउन साइड है ना। सो इट इज अ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी which are which are generally which are generally which are generally non-green। roots आपके कैसे? they are non-green in color ना। so generally non-green, they are round, right? so cylindrical, non-green, cylindrical, and without nodes and internodes। नोड्स एंड इंटरनोड समझते हो बच्चा लोग? नोड्स एंड इंटरनोड समझते हो? स्टेम देखे हो आप? स्टेम समझ लीजिए, आपका स्टेम है, तो स्टेम में कैसे होते हैं? बीच बीच में नोड्स होते हैं, ऐसे देखे होंगे आपने। सो दो नोड के बीच के स्पेस को बोला जाता है इंटरनोड। तो नोड्स जो होते हैं वहां से आपकी क्या होती हैं? लीव्स अराइज होती हैं फ्रॉम नोड्स। ओके, या फिर यहाँ से आपका जाके ब्रांच होगा, फिर ब्रांच में जाके लीव्स होगी। तो ऐसा रूट के केस में नहीं होता। सो देयर इज नो node and internode। okay, so done this much। so root are the descending part of the plant body which are generally non-green, cylindrical and without nodes and internodes। done। next point लिखो, बहुत ही important है, इसी root में ही next point लिखो। roots are positively जियोट्रॉपिक। लिखो, फिर बताती हूँ आपको, एक्सप्लेन करती हूँ मैं। रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक। so roots are positively geotropic and hydrotropic। लिख के हो गया? डन राइटिंग? Yes.
ओके स्टूडेंट्स, जियोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? हियर जियो स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी, ओके, हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर। सो जियोट्रॉपिक मतलब क्या होता है बच्चा लोग? यहाँ पे आपका जो प्लांट्स है दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब पॉजिटिवली टुवर्ड्स द ग्रेविटी। अब आपका रूट कहाँ होता है? डाउन साइड, राइट? आपका रूट का इलोंगेशन कैसा होता है? ग्रो, वो डाउन साइड ग्रो होता है, दैट इज टुवर्ड्स द ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी क्या होता है? सारी की सारी चीजें डाउनवर्ड्स के डायरेक्शन में खींचती है, राइट? So that is why it is called as positively geotropic, that is growing towards the gravity, okay? And hydrotropic मतलब water। अब as we know water हमारा कहाँ? अंडरग्राउंड में सारा का सारा प्रेजेंट होता है, राइट? So that is why it is called as कि roots are positively geotropic and positively hydrotropic, that is towards the downside। समझ में आया सबको इतना? किसी को कुछ डाउट? Say yes or no. No. Okay, so next यहाँ पे अब बात होगी they are positively geotropic, that is growing towards the gravity and water, and negatively phototrophic, negatively phototropic and aerotropic। अब इसका मतलब क्या हो गया? बेसिकली यहाँ पे रूट्स में 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो रूट्स आर जनरली positively growing towards the geotropic and hydrotropic, मतलब towards the gravity and water, but negatively phototropic and aerotropic। photo stands for light या फिर you can say sunlight। समझ में आया? so photo stands for sunlight and aero stands for air, ठीक है? सो आपका जो रूट है बेसिकली दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अब रूट्स कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉइल के नीचे, राइट? तो सॉइल के नीचे सनलाइट पहुंच रहा है क्या? नहीं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। सनलाइट की जरूरत नहीं है रूट को ग्रो होने के लिए, लेकिन आप यही अगर उल्टा कर दो, रूट्स ऊपर कर दो और जो बाकी का स्टेम वाला पार्ट है उसको नीचे लगा दो, तो आपका प्लांट सरवाइव करेगा क्या? नहीं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज, जो रूट्स होते हैं जनरली दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड एरोट्रॉपिक। समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट या चार की चारों चीजें समझ में आई अच्छे से? Yes. Yes. यश, यश और सार्थक, निकिता, अजीत हो या सो गए? Yes. अवंतिका, Yes, ma'am. स्टूडेंट थोड़ा सा एक्टिव रहो, ओके? सो सारी चीजें सबको क्लियर है? Yes. Yes. लिखा सबने? रफ करूं? Yes. Okay, so now next we'll see typical root structure। अभी हमने इन जनरल देखा कि रूट्स के इन जनरल कैरेक्टर्स क्या थे। सो दे आर नॉन ग्रीन, दे आर सिलेंड्रिकल, नोड्स और इंटरनोड्स एब्सेंट होते हैं, दे आर द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ओके? इसके अलावा जो 4 इंपॉर्टेंट चीज थी, दे आर पॉजिटिवली व्हाट? जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक, बट नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड एरोट्रॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके? अगर एमसीक्यू आया तो डेफिनेटली इट विल कम, और आइदर इट कैन कम फॉर 2 मार्क्स कि आपका रूट जो है उनका नेचर कैसा है। दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड एरोट्रॉपिक। नाउ विल सी टिपिकल रूट स्ट्रक्चर। सो टिपिकल रूट स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो अलग अलग रीजन से आपको देखने मिलेंगे टिपिकली जो रूट का होता है। ओके,
सो आपका जो लोएस्ट रीजन होता है यहाँ से विल स्टार्ट. सो दिस राउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रूट कैप और रीजन ऑफ रूट कैन यू कैन से. ओके, सो दिस इज रीजन ऑफ रूट कैप. अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा जाओगे. सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक रीजन. किस रीजन में क्या होता है हम देखेंगे बाद में, पहले अभी लिखते चलो. दिस इज मेरिस्टेमेटिक रीजन. इसके ऊपर आप और जाओगे थोड़ा सा. सॉरी, दिस इज योर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक. थोड़ा सा डार्क हो गया है. ओके, this region is region of elongation. दिख रहा है क्या आप लोगों को? उसके बाद दिस इज योर रूट हेयर वाला रीजन. दैट इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ root hairs. एंड इसके ऊपर आप और जाओगे तो योर रीजन ऑफ मैचुरेशन. अच्छा, किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया क्या, मैंने नीचे से क्यों स्टार्ट किया? ऊपर से भी नीचे तो हम आ सकते थे ना, तो नीचे से हम ऊपर क्यों गए? किसी को आया दिमाग में ये डाउट? हम नीचे से ऊपर क्यों गए स्टूडेंट्स? क्योंकि जब भी हम टिपिकल रूट स्ट्रक्चर या फिर रूट का हम लोग फॉर्मेशन वगैरह देखते हैं ना, डेवलपमेंट, सो दैट इज फ्रॉम डाउन टू अप साइड. दैट इज वाई अभी आप देख सकते हैं जैसे ही नीचे से आप देखने जाएंगे तो फर्स्ट जो आपका रीजन है दैट इज रीजन ऑफ रूट कैप. तो ये आपका रूट कैप प्रेजेंट है जो आपकी रूट को प्रोटेक्ट कर रहा है. अब जनरली रूट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा पॉइंटेड होता है. ओके, दिस इज योर रूट, लेकिन इसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लगा रहता है कैप, दैट इज कॉल्ड एज रूट कैप. समझ में आया? सो दिस इज योर रूट कैप. ये राउंड वाला पार्ट इस रूट कैप जो कि आपके रूट को प्रोटेक्ट कर रहा है. ओके, और जो कि हेल्प करता है एनकरेज वगैरह के लिए. सो रीजन ऑफ रूट कैप ये समझ में आया सबको? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट? रूट कैप का काम है प्रोटेक्शन फॉर रूट. नेक्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक रीजन. अब स्टूडेंट जैसे ही रूट कैप के ऊपर वाले रीजन में जाते हो ना आप, सो दिस इज योर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक या फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन आप बोल सकते हो, जहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यू डिवीजन होता है. ओके, आपके जितने भी सेल्स प्रेजेंट है ना, दे आर इन अ डिवाइडेड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक रीजन. जहाँ पे सेल्स कंटिन्यूसली दे अंडरगो डिवीजन, मतलब 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे कंटिन्यू डिवाइड होते रहता है. दैट रीजन इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक रीजन. समझ में आया सबको? अभी यहाँ पे जब आपके सेल्स सारे के सारे डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट रीजन होता है, सेल्स कहाँ पे एंटर करते हैं, टू द नेक्स्ट रीजन, दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन. अब मुझे एक चीज बताओ, अब आपके सेल का 1 का 2 सेल हो गया, 2 का 4 हो गया, राइट? बट ये होने के बाद आपका अभी रूट का लेंथ भी तो बढ़ना है ना. सो जो ये सारे सेल्स है ये कहाँ एंटर कर देते हैं, दे एंटर इनटू द रीजन ऑफ एलोंगेशन, जहाँ पे आपके ये सेल्स कैसे होते हैं, दे ग्रो इन लेंथ. दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन. तो सेल्स अंडरगो इलोंगेशन, वो इलोंगेट होता है, जो डिवाइडेड सेल्स है दे इलोंगेट एंड एंटर इनटू द रीजन ऑफ इलोंगेशन. तो इसके वजह से so basically your region of elongation is responsible for the length of your root. तो रूट कितना लंबा हो रहा है, that depends on the region of elongation. समझ में आया सबको इतना? अब जैसे ही आपके सेल्स elongate हो गए, नेक्स्ट रीजन इज रीजन ऑफ रूट हेयर्स. तो यहाँ पे आपके रूट हेयर्स प्रेजेंट है. तो रूट हेयर्स का काम देखिए, आई होप सबको मालूम ही है, दैट इज द बेसिक फंक्शन जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, राइट? So that is the basic function of region of root hairs, जो कि है absorption.
एंड आफ्टर दिस जो लास्ट वाला पार्ट आपका आता है, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो यहाँ पे सेल्स आपके कैसे होते हैं, वो मेच्योर हो चुके हैं। अब देखिए नीचे से वापस ऊपर जाइए, सबसे पहले आपका रूट कैप, दैट इज प्रोटेक्टिंग द रूट। नेक्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक रीजन, सेल्स आर कंटिन्यूअसली आर इन अ डिवाइडेड फॉर्म, जहाँ पे वो अंडरगो डिवीजन के अंदर जा रहे हैं। नेक्स्ट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन, जो भी सेल्स डिवाइड हुए मेरिस्टेमेटिक रीजन में, दे अंडरगो फॉर इलोंगेशन, वो इंक्रीज इन लेंथ हो रहे हैं, उनका लेंथ बढ़ रहा है। एंड नेक्स्ट दे एंटर इनटू द रीजन ऑफ रूट हेयर। सो रीजन ऑफ रूट हेयर का बेसिकली फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पे जाकर आपके सारे के सारे सेल्स क्या हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? से यस और नो? No. सबको सब चीज क्लियर है? Yes. Yes. ओके देन फटाफट इसे ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। ओके यहाँ पे सिर्फ जितनी चीजें लिखी हैं इतनी ही लिखो, बाकी जो भी फंक्शन है आगे लिखा रही हूं मैं। ये चीजें ड्रॉ करो और इतना आप लिखो। समझ में आ गया ना सबको हर एक चीज? ड्रॉ एंड राइट इट फास्ट फास्ट। डन? डन राइटिंग स्टूडेंट्स? Yes. जिसका नहीं हुआ फटाफट ड्रॉ कर लो। डन एवरीवन? शुड आई रब इट? Yes. Yes. ओके ओके देन Yes. जहाँ पे अभी आप लोग का हो गया बना कर लिख के स्ट्रक्चर, उसके नीचे अभी एक एक पॉइंट लिखते चलेंगे हम लोग। बेसिकली अभी हमने जो भी चीजें मैंने आपको बताई, एक्सप्लेन की, नाउ वी विल राइट इट। ओके सो इसके नीचे लिखो फर्स्ट पॉइंट। एक एक हर चीज अब हम लोग ने जो भी देखी यहाँ पे हमको लिखते चलेंगे हम वो चीज। फर्स्ट पॉइंट लिखो, रूट कैप इज अ, इसके नीचे यहाँ डायग्राम के नीचे, रूट कैप इज अ parenchymatous. Root cap is a parent, parenchymatous, parenchymatous multicellular structure. Root cap is a parenchymatous multicellular structure in the form of cap, present in the form of cap present over young growing root apex, present over young growing root apex. So basically आपका जो रूट कैप होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, रूट कैप इज अ पैरेन्काइमेटस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। सो एक पैरेन्काइमेटस का बना हुआ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है जो भी यंग ग्रोइंग आपके रूट है ना उसके अपेक्स मतलब टॉप पे, अभी मैंने आपको बताया ना पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अपेक्स। तो यंग ग्रोइंग रूट अपेक्स के अपेक्स पे ये प्रेजेंट होता है रूट कैप आपका। ओके done this point, root cap is a parenchymatous multicellular structure in the form of cap present over young root apex. इतना हुआ लिख के
सेकंड पॉइंट लिखो। अब आपका जो रूट कैप होता है ना स्टूडेंट्स, दैट इज जनरली सिंगल। ओके, एक रूट कैप ही प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। ओके, सो सेकंड पॉइंट लिखो, यूजुअली single root cap is present in plants. Usually single root cap is present in plants. अब इसका आपने सोचा है सिंगल रूट कैप क्यों बोला हुआ है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपका जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा रूट का स्ट्रक्चर, जो प्राइमरी रूट होता है ना दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स, लेकिन जो मेन एक्सिस होता है ना तो वहां पे सिंगल ही जो नीचे आके रूट कैप आपका प्रेजेंट होता है ना वो मेन प्राइमरी वाले पे प्रेजेंट होता है। ओके, सो यूजुअली सिंगल रूट कैप इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एक्सेप्ट वहां पे, यहाँ पे 2-3 टाइप के प्लांट्स है जहाँ पे मोर देन वन रूट कैप इज प्रेजेंट, एक्सेप्ट इन पेंडानस। रुको मैं लिख के देती हूँ, एक्सेप्ट इन पेंडानस और स्क्रूपाइन। So underline it as well, okay? Except pandanus or screwpine, P-I-N-E, pine. समझा बच्चा लोग सेकंड पॉइंट? सो यूजुअली सारे प्लांट्स में एक ही रूट कैप प्रेजेंट होता है, बट देयर इज एक्सेप्शन, देयर आर सम प्लांट्स जहाँ पे मोर देन वन रूट कैप इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल इज पेंडानस और स्क्रूपाइन, अंडरलाइन कर लेना, ओके? वेयर जहाँ पे मल्टीपल कैप्स प्रेजेंट है, मतलब एक से ज्यादा प्रेजेंट है। नाउ राइट थर्ड पॉइंट लिखो अभी। इन some plants like hydrophytes, ये दोनों अंडरलाइन कर लेना, ओके? पेंडानस और स्क्रूपाइन। इन some plants like hydrophytes, अब हाइड्रोफाइट्स में डैश डाल के लिखो, लाइक पिस्टिया एंड इकर्निया। इन some plants like hydrophytes, पिस्टिया एंड इकर्निया। नहीं दिख रहा है, एक मिनट। अभी दिख रहा है? इन पिस्टिया एंड इकर्निया, in some plants like hydrophytes, in Pistia and Icernia, आपके जो रूट कैप होते हैं ना स्टूडेंट, दैट इज रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट्स। ओके, दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा, इन विच प्लांट्स द रूट कैप आर रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट्स, सो द आंसर विल बी पिस्टिया एंड इकर्निया। ओके, अंडरलाइन कर लेना दोनों को भी। सो इन पिस्टिया एंड इकर्निया दोनों भी क्या है, हाइड्रोफाइट्स है, इन विच द रूट कैप्स आर रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? Yes. Yes. Okay, so in pistil इकर्निया root cap is replaced by root pocket. Right, now next point, fourth point लिखो अभी। अब हम देखो, हमने पहला वाला देख लिया, रूट कैप हो गया। अभी हम नेक्स्ट रीजन देखेंगे जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे लिखो, मेरिस्टेमेटिक रीजन इज द रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन is the region where the cell divides continuously. Meristematic region is the region where the cell divides continuously. Full stop. Next point लिखो, fifth point, region of elongation
region of elongation is the region where region of elongation is the region where the divided cells ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ब्रैकेट में ऐसे लिखो cells from meristematic region. Cells from meristematic region. Okay. So आप दोनों भी लिख सकते हो. Region of elongation is the region where the divided cells or cells from meristematic region undergoes elongation and shows longitudinal growth. Longitudinal मतलब vertical line type. Okay, so longitudinal growth. So vertical direction में यहाँ पे region of elongation में आपका growth दिखा रहा है. ठीक है. So region of elongation में in region of elongation the divided cells or cells from meristematic region, जो भी cells divide हुई थी meristematic region में वो elongation में जाके क्या होती है, elongate हो जाती है and the cell shows longitudinal growth, that is in a vertical direction. Okay, done. यहाँ तक होगा लिखिए cell shows longitudinal growth. Done students. Next point लिखो region of root hair is also called region of absorption or piliferous zone तो आपका जो region of root hair, right, is also called region of absorption or piliferous zone. Underline it, piliferous zone. तो आपका region of root hair वाला it is also called absorption and piliferous zone. अब ये region किस चीज का बना है? Basically it is made up of root hair. Okay, क्योंकि region of root hair है तो यहाँ पे root hair present है तो जिसका मेन काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स लाइक, राइट. यहाँ पे हेयर लाइक आउटग्रोथ है. सो रीजन ऑफ रूट हेयर इज आल्सो कॉल्ड रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन और पिलिफेरस जोन which shows hair like outgrowth. आउटग्रोथ क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एक्सटीरियर साइड में इसका ग्रोथ देखने मिल रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आउटग्रोथ. हेयर लाइक है. ओके, क्योंकि यहाँ पे जो आपके रूट्स होते हैं दैट इज आल्सो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. तो हेयर लाइक आउटग्रोथ है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो रूट हेयर्स आर शॉर्ट लिव्ड. आपके जो रूट हेयर्स हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड, मतलब इनका जो लाइफ स्पैन है बहुत ही कम है. दे आर शॉर्ट लिव्ड. रूट हेयर्स आर शॉर्ट लिव्ड एंड आर रिप्लेस्ड. अब इनका जो लाइफ स्पैन है ना बच्चा लोग रूट हेयर्स का दैट इज ओनली अप 10 to 15 days ओनली. तो जनरली वो कैसे होते हैं? दे आर रिप्लेस्ड. हर 10 से 15 दिन में रूट हेयर्स आपके क्या होते हैं? रिप्लेस होते जाते हैं. सो रूट हेयर्स आर शॉर्ट लिव्ड एंड आर replaced after every 10 to 15 days. 10 to 15 days को थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा. So maybe question can come कि after how many days आपका जो root hairs है it is replaced. So generally 10 to 15 days के बाद. Done? समझ में आ रहा है सबको? किसी को कुछ डाउट? अब यहाँ पे रूट हेयर के बाद जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट रीजन आता है दैट इज रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन, राइट.
या फिर रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, रूट कैप का काम है रूट को प्रोटेक्ट करना, रूट अपेक्स जो न्यू ग्रोइंग प्लांट्स है उनको प्रोटेक्ट करना। यहाँ के बाद आपका जो कंटिन्यू सेल्स होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन में कंटिन्यू डिवाइड होते जाता है, उसके बाद में डिवाइडेड सेल्स अंडरगो एंटर द रीजन ऑफ इलोंगेशन जहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ दिखाता है, दैट इज ग्रो इन अ वर्टिकल इलोंगेशन दिखाता है। रूट का लेंथ भी इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसके बाद एंटर करता है रीजन ऑफ रूट हेयर्स में जहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसका काम होता है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो अभी लिखो रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन। लिखो अभी आप लोग, रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रीजन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। रीजन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे कैसे होते हैं बच्चा लोग, जो भी यहाँ पे रूट हेयर्स के बाद में जो मैचुरेशन में एंटर करते हैं ना वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मतलब किसका क्या फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, डिफरेंशिएशन में चले जाते हैं वो। यहाँ पे लिखो सेल्स ऑफ दिस रीजन, सेल्स ऑफ दिस रीजन जो सेल मैचुरेशन वाले हैं ना दे आर मैच्योर्ड इनफ, दे आर डिफरेंशिएटेड। तो यहाँ के सेल्स जो होते हैं दैट इज दे आर इम्पर्मिएबल टू वाटर, वाटर इनके अंदर एंटर नहीं कर पाता ये सेल्स के अंदर बिकॉज दे आर मैच्योर इनफ। सो रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रीजन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन एंड the cells of this region are impermeable to water, are impermeable to water due to they are thick in nature, due to they are thick in nature, THICK thick in nature। अभी वो कैसे हैं, बहुत ही थिक है नेचर में, दैट इज वाई दिस रीजन यहाँ पे जो भी मेच्योर सेल्स है या फिर डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं दे आर इम्परमिएबल टू वाटर। समझ में आया इतना सबको? सो हियर वी डन विद द टिपिकल रूट स्ट्रक्चर। रूट का जो भी टिपिकल स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स? एनीवन, एनी डाउट? Say yes or no? No. सबको सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे हमने टिपिकल रूट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। सो हमने अभी बेसिकली अभी तक क्या क्या देखा, हमने एंजियोस्पर्म्स के 5 डिफरेंट टाइप्स देखे, हाइड्रोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स, सेमोफाइट्स, लिथोफाइट्स, हेलोफाइट्स। उसके बाद में हमने जनरल एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है उसका स्ट्रक्चर देखा जिसमें 2 टाइप के सिस्टम प्रेजेंट है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ओके, फिर हमने उसमें से रूट सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया जिसमें हमने पहले एक नॉर्मल रूट देखा, रूट कैसा होता है, इट इज अ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। अब उसका नेचर कैसा होता है, इट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड एरोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक। इसके अलावा इट इज नॉन ग्रीन, सिलेंड्रिकल है और जहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स दोनों भी एब्सेंट है। उसके बाद में हमने टिपिकल रूट स्ट्रक्चर देखा जहाँ पे हमने अलग अलग यहाँ पे ड्रॉ करके देखा है, रूट कैप होता है जो प्रोटेक्शन देता है, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है जहाँ पे डिवीजन देखते हैं, उसके बाद इलोंगेशन होता है सेल्स का, फिर रूट हेयर्स का प्रेजेंस जो एब्जॉर्प्शन करता है, एंड द लास्ट वन इज रीजन ऑफ मैचुरेशन जहाँ पे जाकर आपका सेल जो होता है डिफरेंशिएट हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। अब मेच्योर होने के बाद में इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। टिल हियर एनी डाउट टू एनीवन? अभी आज के लिए बस इतना। अभी एक टॉपिक लास्ट हम देखेंगे, फंक्शन ऑफ रूट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ रूट। सो यहाँ पे लास्ट एक हम देखेंगे फंक्शन ऑफ रूट। हार्डली 2 मिनट्स का टॉपिक है। तो फंक्शन ऑफ रूट में बेसिकली ना स्टूडेंट्स 2 टाइप के फंक्शन होते हैं रूट के। एक होता है प्राइमरी फंक्शन एंड अनदर वन इज सेकेंडरी फंक्शन। समझ में आया सबको? सो फंक्शंस ऑफ रूट में 2 टाइप के होते हैं, एक है प्राइमरी फंक्शन एंड अनदर वन इज सेकेंडरी फंक्शन।
अब जो प्राइमरी फंक्शन होता है बच्चा लोग रूट का, दैट इज द फिक्सेशन ऑफ प्लांट और एनकरेज ऑफ द प्लांट बॉडी। मतलब क्या, आप अगर प्लांट को लगा रहे हो कुंडी में, ओके, तो उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, हम पहले क्या देखते हैं कि जो प्लांट है वो लगना चाहिए उस सॉइल में, राइट। तो जो प्राइमरी फंक्शन होता है दैट इज फिक्सेशन ऑफ प्लांट। आप जहां भी लगा रहे हो उसको, तो वहां पे इसका फिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फिक्सेशन ऑफ प्लांट, फिक्सेशन ऑफ प्लांट और एनकरेज ऑफ प्लांट बॉडी। समझ में आया सबको? सो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट? फिक्सेशन ऑफ प्लांट और एनकरेज ऑफ द प्लांट बॉडी। मतलब पहला तो वो लगना चाहिए, जिस भी आप कुंडी या गमले में उसको लगा रहे हो प्लांट को, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले उसका लगना, फिक्स होना उसको कुंडी में, तब वो आगे जाके ग्रो होता है, राइट। सो मेन इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन इज फिक्सेशन ऑफ प्लांट और एनकरेज ऑफ द प्लांट बॉडी। प्रॉपरली जो भी आपका प्लांट का बॉडी है वो प्रॉपर गमले में आपके फिट हो जाना चाहिए, प्रॉपर वो होना चाहिए, तब जाके वो आगे जाके ग्रो होगा। सो दिस इज द प्राइमरी फंक्शन एंड द नेक्स्ट इज सेकेंडरी फंक्शन। अब जैसे कि आपका प्लांट लग गया, तो जो सेकेंडरी फंक्शन होता है रूट्स का, आपका प्लांट अभी लग गया, एकदम प्रॉपर फिक्सेशन हो गया, एनकरेज दिखा रहा है, देन आपका आता है सेकेंडरी फंक्शन जो कि होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। सो सेकेंडरी फंक्शन में हम देखेंगे क्या आता है, absorption of water, minerals, right? So secondary function में absorption of water, minerals from soil, सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना भी उसका फंक्शन होता है। एक और होता है दैट इज कंडक्शन। दो अलग चीज है, ओके। एक होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम सॉइल एंड द सेकेंड फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ दिस एब्जॉर्ब मटेरियल। समझ में आ रहा है डिफरेंस सबको? देखो, एक चीज होता है एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करके उसको वहीं तक रखना, दूसरा है कंडक्शन। मैंने लास्ट लेक्चर भी आप लोगों को बताया था जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे। कंडक्शन मीन्स व्हाट? अभी यहाँ पे जैसे रूट हेयर से उसे एब्जॉर्ब किया, तो उसको ऊपर तक स्टेम तक पहुंचाना है ना, सारा का सारा वाटर एंड मिनरल्स जो भी एब्जॉर्ब है। सो कंडक्शन ऑफ एब्जॉर्ब्ड मटेरियल्स। So these two functions are the functions of root. That is, primary function is fixation of plant or anchorage of the plant body, and then secondary में होता है, एक होता है absorption of water minerals from the soil, दूसरा है conduction of absorbed things, जो भी चीजें absorb की उसे conduct करना, from down to upside, from root to stem तक उस चीज को पहुंचाना। समझ में आया सबको यहाँ तक? Say yes or no? Yes. सबको सारी चीजें क्लियर हैं? Yes. Done writing? So we are done here. Next time हम लोग जो next lecture है, in that we'll start with the types of root. Okay, types of root से हम start करेंगे. I hope everything is clear to everyone till here. So done writing?